Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your teacher Nida Akmal from Allied School Ferozpur Road campus. Dear student, as you know, we all are suffering from the situation of smoke. So please be safe and stay at your homes. Wear your mask. Dear students, we are going to start our new chapter, climate change. This is our last chapter of second assessment. This is our unit 5 of geography section. We should learn about different topics in this chapter like the weather, climate, what is climate change, greenhouse effect, and the changes caused by the greenhouse effect, global warming, and the importance of ozone layer. These all are topics which we are going to cover in this chapter. Now let's get started. First of all, dear students, we are going to discuss the difference between weather and climate. Weather is basically a short-term state of atmosphere and climate is long-term pattern of weather. This is long-term weather condition which sustain for a long time, like maybe for more than 1 year. But weather can change suddenly. वेदर में सडन वेरिएशन आता है बट क्लाइमेट जो है वो एक लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेनेबल होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, इफ वी आर गोइंग टू द फोकस द एग्जांपल्स ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट, सो वेदर में हमारे पास आप देखते हैं कि आप अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो सडनली जो है वो चेंज आ रहा होता है. हो सकता है कि अभी रेनी वेदर हो लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही वो सनी भी हो सकता है और वो विंडी भी हो सकता है. तो आप देखते हैं कि उसमें सडन वेरिएशन आ सकता है. सेम डे में भी बहुत टाइम पे वेदर में वेरिएशन आती है लेकिन क्लाइमेट जो है वो काफ़ी अरसे तक बरकरार रहता है. अगर हम क्लाइमेट की एग्जांपल्स देखते हैं तो जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो उसमें थ्रू आउट द ईयर जो टेम्परेचर है वो वार्म रहता है. इसी तरह से हमारे जो एरियाज हैं तो उसमें बहुत सारे हमारे फॉरेस्ट हैं जो कि वार्म रह रहे होते हैं. ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है, वहाँ का क्लाइमेट जो है ह्यूमिड होता है. इस तरह अगर डेजर्ट्स की बात करते हैं तो डेजर्ट्स में जो इन्वायरमेंट होता है वो बेसिकली हमारा हॉट होता है. Polar regions are also the example of climate. So dear students, hope you can differentiate the weather and climate. Now come Okay dear students, now come to the topic climate change. Climate हमने discuss कर लिया कि climate is basically a long term weather condition जो suddenly change नहीं होता. Climate change refers to a long term shift in temperature and weather patterns. ये shift जो है वो natural भी होता है लेकिन 18 से देखा जाए तो some human activities are basically the main driver of climate change. हमारी जो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो बेसिकली क्लाइमेट चेंज का बेसिक रीजन बन रही हैं और वी आर और सफरिंग फ्रॉम इट. आप सिचुएशन ऑफ स्मोक को सफ़र कर रहे हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये बेसिकली किस वजह से है, क्लाइमेट चेंज की वजह से. हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं हाउ द ह्यूमन बीइंग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, हाउ दे आर द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज. बेसिकली द मेन रीजंस आर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. जो हम फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहे होते हैं, रैपिडली कर रहे हैं, तो वो मेन रीजन है क्लाइमेट चेंज का. सेम एज इट इज डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज इज बेसिक रीजन ऑफ क्लाइमेट चेंज. At the same way, livestock production, raising of livestock is basically the reason of climate change because the production of methane gases are also the basic reason of climate change. Same as it is the rapidly use of fertilizers, industrial processes are also the main reason of climate change, plastic and waste, and the more use of transportation. These all are the reasons behind the rapid change in our climate, so we all are suffering from it.
Okay, dear students, now we are going to discuss climate change related events. And according to my point of view, the most important climate change related event is smoke, which we are suffering from. And the other events are the most extreme heat wave in world history, such as June 2021, which is going to observe in Western North America in Karachi, which killed many people in Pakistan. Same as the European summer floods, which is a disastrous situation in European history, and flooding in Pakistan in 2010 and 2022 are the disastrous impact of climate change. Same as it is in central USA and Pakistan, cold wave of Feb 2020 killed many people in Murray. July 2021 is the Earth's warmest month is recorded in history. And Pakistan is ranked 6th in the world in climate risk index. And unluckily, Lahore is now the most polluted city of the world due to the situation of smoke. Now come to the next topic, which is ozone layer. So the first question is, what is ozone layer? Ozone is basically one of the atmospheric gases. Ozone is produced and destroyed naturally. It is present in the upper portion of atmosphere. And why ozone layer is important for us? Because ozone layer protects us from ultraviolet radiations, which can cause cancer and eye diseases, obviously, which are very harmful for us. And ozone layer protects us from these dangerous ultraviolet radiations and reflect them back to the sun. Okay, students, as you all know that ozone layer is very much important for all of us, but we are suffering from the depletion of ozone layer. What is basically the depletion of ozone layer? Depletion is basically the thinning of the ozone layer present in the upper atmosphere. And why this has happened? And this is all happen because of our human activities, excessive use of CFC gas, which is used in our air conditions, refrigerators. This is basically used as a cooling agent, which is harmful for the ozone layer. Same as it is the excessive use of body sprays, air fresheners and perfumes. These are really dangerous for our ozone layer. So आप देख रहे हैं, अगर ये डायग्राम आपको नजर आ रही हो तो अर्थ को एक रैप किया हुआ है एक लेयर ने, लेकिन हमारी कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एक्सेसिव यूज ऑफ CFC गैस एंड अदर डेंजरस गैसेस की वजह से उसके अंदर जो है आहिस्ता आहिस्ता होल होता जा रहा है. तो जो सन से आने वाली रेडिएशंस बेसिकली रिफ्लेक्ट बैक कर रही थी, तो वो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो हमारी अर्थ को आहिस्ता आहिस्ता डैमेज कर रही हैं, उसमें एंटर हो रही हैं, जो कि डिजीज़ का बेसिक जो है रीज़न बन रही हैं, जिसमें हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो चीज़ें हैं, जैसे लाइक आई डिजीज़ सब फेस कर रहे हैं. आपने देखा होगा, आप रियल लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं तो आई इन्फेक्शन जो है आप लोगों ने ऑब्जर्व किया कि लास्ट ईयर पिंक आई इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों ने सफ़र किया उससे. इसी तरह से कैंसर जो है बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है. तो ये दीज ऑल आर बेसिकली द रीज़न ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर. Okay, dear students, now come to the next topic. Dear students, have you ever seen the greenhouse? Have you ever visited any nursery near to your homes? What is greenhouse? Greenhouse में basically plants को क्यों रखा जाता है? Dear students, अगर हम ग्रीन हाउस को देखते हैं तो ग्रीन हाउस बेसिकली होता किस चीज़ का है, पहले हम ये डिस्कस करते हैं. ग्रीन हाउस या तो ग्लास का या प्लास्टिक का
एक ब्लॉक शेप जो है हाउस बनाया होता है और उसमें कुछ प्लांट्स को रखा जाता है जो कि जिन्हें नेचुरली जो है वार्म एनवायरनमेंट चाहिए होता है। सो बेसिकली जो ग्रीन हाउस है या जो कवरिंग है, एक ब्लॉक है प्लास्टिक का या ग्लास का, वो क्या काम कर रहा होता है, जो सन से हीट आ रही होती है वो उसे ट्रैप कर लेता है और उसके एनवायरनमेंट को वार्म रखता है, जिसकी वजह से जो एक नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए होता है प्लांट्स को, जो उन्हें वार्म एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो करने के लिए, वो उन्हें मिलता रहता है ऑल टाइम। डे टाइम में तो उन्हें हीट मिल रही होती है, लेकिन जिस टाइम में उनके पास हीट नहीं होती सन की, उस टाइम में भी उन्हें एक वार्म एनवायरनमेंट मिल रहा होता है, बिकॉज उस जो एक ब्लॉक है ग्लास का या प्लास्टिक का, उसने हीट को ट्रैप किया हुआ है और उसके अंदर का सारा एनवायरनमेंट जो है वार्म रहता है। सेम एज इट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। जो ग्रीन हाउस है वो मैन मेड है और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बेसिकली जो है नेचुरल है। अल्लाह ताला ने उसे बनाया है नेचुरली। हमारी अर्थ को ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है दिया गया है, जिसमें हमारे पास नेचुरली जो हीट आ रही होती है सन से, रेडिएशंस आ रहे होते हैं, तो वो हमारी अर्थ की जो सराउंडिंग में ग्रीन हाउस गैसेस हैं उस हीट को ट्रैप कर लेती हैं और हमारी अर्थ को वार्म रखती हैं। जो हमारी बेसिकली ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एक ब्लैंकेट की तरह वर्क करती है। ब्लैंकेट का काम क्या होता है, हमें वार्म करना, हमें कूलिंग से बचाना, प्रोटेक्ट करना। सेम एज इट इज जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, तो जितनी भी हीट आ रही होती है सन से, उसे ट्रैप करती हैं और हमारी अर्थ को वार्म करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन अगर ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो? अगर ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो बेसिकली हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड होता, जो कि हमारी लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल प्रोसेस बनाया है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, जिसमें एक अप्रोप्रिएट जो हीट है वो ग्रीन हाउस गैसेस उसे ट्रैप करती हैं और हमारी अर्थ को वार्म रखती हैं, विच इज सुटेबल टू एग्जिस्ट। आप देख रहे हैं कि आपको जो स्क्रीन पर डायग्राम नजर आ रही है, तो विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको नजर आ रहा है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो हमारी अर्थ बिल्कुल कूल हो जाती और यहाँ पे लाइफ एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जो नेचुरली ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसने हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को, टेम्परेचर को वार्म रखा हुआ है। आप इस डायग्राम को देखें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है। आपको मिड में नजर आ रही है अर्थ है, अर्थ के सराउंड में आपके पास एटमॉस्फेयर है और एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे पास मल्टीपल ग्रीन हाउस गैसेस, जिसके अंदर ओजोन गैस मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है और मीथेन गैस मौजूद है। ये सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। इनका काम क्या है कि जो सन से रेडिएशंस आ रही हैं, आप देख रहे होंगे, तो वो रेडिएशंस जो हैं वो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो उससे आने वाली जितनी भी हीट है सन से आने वाली, उसको ट्रैप कर रही हैं और उसे रिफ्लेक्ट बैक होने से रोक रही हैं, जिसकी वजह से जितनी ज़रूरत होती है उन्हें रिफ्लेक्ट कर लिया जाता है और बाकी रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है, जिसकी वजह से जो है हमारी अर्थ में एक सूटेबल जो है वार्म इन्वायरमेंट हमें मिलता है, जो कि लाइफ एक्सिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बेसिकली जो है हमने इस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी अपनी कुछ एक्टिविटीज की वजह से स्पॉइल्ड कर दिया है, खराब कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो रहा है और वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस की वजह से जो है बहुत सारे अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आ रहे हैं, जो कि हमारी लाइफ को, हमारी एग्जिस्टेंस को
के लिए एक जो है डैमेज और डेंजर बनते जा रहे हैं। अब वो चीजें कहाँ से आ रही हैं बेसिकली, और वो हम क्या चीजें फेस कर रहे हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से होती हैं, क्योंकि हमारी अर्थ को एक जो है अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर ग्रीन हाउस गैसेस जा रही हैं, बट ड्यू टू सम एक्टिविटीज क्या हो रहा है कि बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल कर रहे हैं, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा इमिशन हो रहा है। इसी तरह रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक की वजह से मीथेन गैस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह जो हम गार्बेज को बर्न कर रहे होते हैं, इसके अलावा जो हम CFC गैस को बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं, ये सारे वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम एक नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट को डैमेज करने का कॉज बन चुके हैं। और इस हमारे कॉज की वजह से जो हम सफ़र कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या हैं? रैपिड, आप देख रहे होंगे कि फ्लडिंग्स आ रही हैं, ठीक है, रैपिडली फ्लडिंग्स हमें कहीं ना कहीं जो है वो फेस करने को मिल रही होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है डिजास्टर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कैजुअलिटीज़ भी होती हैं, प्रॉपर्टी लॉस भी हो रहा है। इसके अलावा अनप्रिडिक्टेबल रेन्स हैं, आपको पता है वेदर फोरकास्ट एप्स भी हमारी फेल हो जाती हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है अनप्रिडिक्टेबल रेन्स जो हैं वो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। सेम एज इट इज़ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज होता है फ्लडिंग का। और इसी तरह से सी लेवल राइज हो रहा है, और फर्टाइल एरियाज हमारे जो हैं उसमें हमें डिजर्टिफिकेशन मिल रही है, फर्टाइल एरियाज हमारे ख़राब हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है वो ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, कल्टीवेशन जो है वो हमारी इफेक्ट होती है। इसी तरह से ऑफ कोर्स जब फ्लडिंग और इस तरह की दूसरी सिचुएशंस की वजह से लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो हमें फेस करने को मिलता है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक फैक्टर है जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जब एक्सेसिव जो है इमिशन होता है ग्रीन हाउस गैसेस का, तो जब एक्सेसिव होगा कोई भी चीज़, तो वो क्या करेगी? ग्रीन हाउस गैसेस का काम है हीट को ट्रैप करना और अर्थ को वार्म करना। तो जितनी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशंस हो रहे हैं, वो उतनी ही ज़्यादा हीट ट्रैप कर रही हैं। वो लेयर जो एक थिन लेयर थी वो थिक होती जा रही है, मल्टीपल ग्रीन हाउस गैसेस वहाँ पे जो है कलेक्ट होती जा रही हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो हीट ट्रैप कर रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है वो रेज होता जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें अपनी अर्थ को सेफ कैसे करना है, अपने फ्यूचर को कैसे सेफ करना है, कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो हम अपने एंड के ऊपर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ सेफ रहे, या हमारे आने वाले टाइम में, हमारे फ्यूचर वाले टाइम में हम एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो जनरेट कर सकें। वो उन चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है। हमने अपने बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं। हम सबसे पहले तो आप देखिए ना कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या ऐसे चेंज लेकर आ सकते हो जो कि आपको ज़्यादा नुकसान भी ना पहुंचाएं और आप इजीली अपना कंट्रीब्यूशन भी शो कर सकें। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, अगर अपने बिहाफ पे देखा जाए, तो हम यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि भाई आप बाय वॉकिंग जो है वो उस ट्रैवलिंग को कर सकते हो इजीली, तो वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन को अवॉइड करना चाहिए। आपने देखा होगा कि जापान में, चीन में इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा है कि लोग साइकिलिंग को प्रेफर कर रहे हैं, एक्सेप्ट जो है दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक कार व्हीकल्स, अदर व्हीकल्स जो हैं वो उनको अवॉइड किया जा रहा है। तो इस पे फोकस हो रहा है कि साइकिलिंग जो है वो एक बेस्ट एक्सरसाइज भी है, और वो जो हमारी हेल्दी एक इन जो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हम अपने एंड पर कर सकते हैं कि हम मिनिमाइज कर दें यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को। ऐसे ही हम लोग जो एयर फ्रेशनर्स हैं और जो हम बॉडी स्प्रेस यूज़ करते हैं उसको मिनिमाइज कर सकते हैं अपने बिहाफ के ऊपर। डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ ट्रीज को रोक सकते हैं, न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और अपनी अर्थ को सेव कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अर्थ को सेव करने के लिए और उसको एक हेल्थी लुक देने के लिए, उसको ग्रीन करने के लिए
हमारे पास एक 3 R's फॉर्मूला है जो कि बेस्ट फॉर्मूला है। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम अपनी अर्थ को एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो चेंजेस आ रहे हैं, जो उसके डिजास्टर्स इफेक्ट्स हम फेस कर रहे हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो 3R फॉर्मूला बेसिकली क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रीसाइकल। रिड्यूस मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें अपनी लाइफ में मिनिमाइज करनी है, कम करनी है। रीयूज, rather than to produce new things, we have to reuse the old things. Same as it is recycle. बहुत सारी चीजों को रिसाइकिल करके न्यू प्रोडक्ट्स को बनाया जा सकता है कि रादर के हम इससे न्यू रिसोर्सेस को यूज करें, नई चीजें लेकर आए। हम पुरानी चीजों को ही रिसाइकिल करके उन्हें यूज में ला सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स नजर आ रहे होंगे, रिड्यूस के, रीयूज के, रिसाइकिल के। मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप अपनी जो रियल लाइफ है उसमें ऑब्जर्व करो कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप रिड्यूस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस कर सकते हो। इसी तरह वाटर का आपको शो हो रहा है कि वाटर वेस्टेज को आप रोक सकते हैं, उससे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा ये हैबिट कब हम यूज कर रहे होते हैं? जब हम ब्रश करते हैं तो टैब ओपन ना करें, टैब ओपन करके ना रखें। इस तरह से जब हम डिशेस वॉश कर रहे हैं या इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें टैब को ऑल टाइम ओपन ना करें। एनर्जी को सेव करें, जब आप एनर्जी यूज नहीं कर रहे अपने रूम से जाते हुए अपनी लाइट्स ऑफ करके जाएं। ये थोड़े से ऐसे जो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम कर सकते हैं। आप फॉसिल फ्यूल्स जो हैं उनको बर्न ना करें, उससे रिड्यूस करें। शॉपिंग बैग्स का यूज ना करें, उसके यूज को कम करें, उसकी जगह पे आप फैब्रिक का यूज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन के यूज को कम कर सकते हैं। दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ रिड्यूस। अब रीयूज के ऊपर आते हैं तो रीयूज हम क्या क्या कर सकते हैं? क्लॉथ्स को रीयूज किया जा सकता है, पेपर बैग्स को रीयूज किया जा सकता है, इसी तरह से फर्नीचर को रीयूज किया जा सकता है। ये ऐसी चीजें हैं कि जिन्हें आप वेस्ट करने के बजाय उन्हें रीयूज कर सकते हैं। इसी तरह से रिसाइकिल की बात की जाए तो रिसाइकलिंग में हमारे पास बहुत सारी चीजें आती हैं। लाइक पेपर को रिसाइकिल किया जा सकता है, ग्लास को रिसाइकिल किया जा सकता है, प्लास्टिक और ऑर्गेनिक को भी जो है हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और एक जो आर है वो मैंने इसमें ऐड किया है रिफ्यूज, कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बेहतर हो सकती हैं हमारे रिफ्यूजल से। लाइक हम कटिंग ऑफ ट्रीज को रिफ्यूज करें और अननेसेसरी थिंग्स को बाय करने में अपना रिफ्यूज करें। जिस तरह बहुत सारी, जैसे हम परफ्यूम्स यूज कर रहे हैं या इस तरह की बहुत सारी बॉडी स्प्रेज यूज कर रहे हैं, तो इन चीजों को अगर हम रिफ्यूज करते हैं तो ये पॉलिसी भी हमें जो है अपने एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए और सूटेबल बनाने के लिए जो है वो एप्लीकेबल होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं इसके नोटबुक वर्क के ऊपर। तो आपने इसमें सबसे पहले जो है अटेम्प्ट करना है वो आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करने हैं। आपने अपने पेज को रेडी करना है, डेट डालनी है उसके ऊपर, डे और क्लास टाइप। बहुत सारी क्लासेस यानी कि 7 सेक्शंस में से आप में से जो है 5 to 4 सेक्शंस ने तो ये काम किया हुआ है। तो जिन बच्चों ने ये काम किया हुआ है वो इसको रहने दें, लेकिन जिन क्लासेस में ये काम नहीं करवाया जा सका ड्यू टू सडन ऑफ, तो वो जो है स्टूडेंट्स इसको ज़रूर अपनी नीट नोटबुक्स के ऊपर करेंगे। तो आपने सबसे पहले अपना पेज रेडी करना है, टॉपिक मेंशन करना है क्लाइमेट चेंज, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की हेडिंग डालनी है आपने। और इस तरह से आपने 1 by 1 जो है अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखना है, और उसमें जो ब्लैंक्स है आपके पास उसे आप ब्लू मार्कर से लिखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपके पास है वेदर इज शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर and dash is long term weather condition climate. So dash and other gases absorb the heat coming from the earth, carbon dioxide. Next point is the atmosphere of the earth changes due to the activities of human beings. Next point is ozone is produced and destroyed naturally. Or next point is the level of carbon dioxide in earth atmosphere is gradually rising. ये आपके 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज रेडी करेंगे फॉर द शॉर्ट आंसर्स।
वहां पर आपने टॉपिक मेंशन करना है, जो क्लासेस डन कर चुकी हैं उन्हें दोबारा नहीं करना, लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ वो उसे नीट नोटबुक के ऊपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर। अभी हमने डिस्कस किया कि क्लाइमेट इज बेसिकली अ लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन एंड वेदर इज अ शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो वो आपने इसका आंसर लिखकर वहां पे एंडिंग लाइन लगानी है और हेडिंग डालनी है क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। इसका आंसर लिखना है आपने द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमॉस्फेयर हैज बीन राइजिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज कॉजिंग टेम्परेचर टू rise. This is called global warming. This is the definition of global warming. इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग डालनी है विच गैस एब्जॉर्ब द हीट कमिंग फ्रॉम द अर्थ। आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस एब्जॉर्ब द हीट कमिंग फ्रॉम द अर्थ। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट अ फ्यू बेनिफिट्स ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए कि ओजोन लेयर बेसिकली प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ultraviolet radiations which cause skin cancer and eye diseases. Next question is define the term greenhouse effect. हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी काफी डिटेल में डिस्कस किया है। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज बेसिकली द वे इन विच हीट इज ट्रैप्ड क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये आपने 5 शॉर्ट आंसर्स इसके करने हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी डिजाइन की है जिसमें आपने जो हमारे पास ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके फॉर्मूलाज को लर्न करना है और अपनी नोटबुक के ऊपर भी आपने इसी तरह से एक टेबल बनाना है जिसमें आप 2 कॉलम्स बनाएंगे। 1 जो है कॉलम है उसमें आप गैसेस मेंशन करोगे, सेकंड कॉलम में आप फॉर्मूलाज लिखोगे। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास जो ग्रीन हाउस गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला है CO2। सेकंड है ओजोन O3, ऑक्सीजन O2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC। और इसके अलावा मैंने डायग्राम का टास्क ऑलमोस्ट आप सारी क्लासेस को दिया हुआ था कि डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है और अपनी नोटबुक पर उसे आपने पेस्ट भी करना है, पेज रेडी करना है। आपने वहां पर एक्टिविटी की हेडिंग डालनी है, स्टेटमेंट लिखनी है, ड्रॉ आ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। और उस डायग्राम को आपने इस तरह से ड्रॉ करना है। आप सबसे पहले अर्थ को ड्रॉ करोगे, इसके बाद आपने एक लेयर ड्रॉ करनी है जिसे आप एटमॉस्फेयर के लिए लेबल करोगे और इसके बाद आप चाहें तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेस को ड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डिफिकल्ट टास्क लग रहा है तो वहां पे आप ग्रीन हाउस गैसेस के नेम मेंशन कर सकते हैं, CO2, O3, O2, CFC, इस तरह की कुछ गैसेस। ये एज एग्जाम्पल जो है मिथेन गैस, आप यहाँ पर उनका फॉर्मूला लिख लें। देखिए सन आपने ड्रॉ करना है और उसमें से कुछ रेडिएशंस जो हैं वो आपने रिफ्लेक्ट कर देनी है और एक आध जो रेडिएशन है वो आपने रिफ्लेक्ट बैक कर देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपने प्रॉपर एक डायग्राम बनानी है, उसे लेबल भी करना है और उसे कलर भी करना है। इसके बाद हम आते हैं बुक वर्क के ऊपर। बुक वर्क में हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर, उसमें आपने जो है करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। और स्टूडेंट्स प्लीज मैं आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि आप MCQs को भी राइट आंसर उसका लर्न किया करें। आप उसमें ऑप्शन बेस्ड जो है आंसर लर्न ना किया करें, ऑप्शंस के ऊपर रिलाई ना किया करें, क्योंकि आपके पास वो एज अ फिल इन द ब्लैंक एज अ शॉर्ट आंसर किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज इन द टेम्परेचर, so option is carbon dioxide. Answer is carbon dioxide. Hydrochlorofluorocarbon is a dash. Hydrochlorofluorocarbon क्या है? It is basically a gas. तो ऑप्शन ए इसका टिक करेंगे आप। एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैस क्या है? हमारे पास जो गैसेस दी हुई हैं उसमें से जो एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस गैस की वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अर्थ वार्मेस्ट मंथ वॉज रिकॉर्डेड इन, हमने डिस्कस किया था क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इवेंट्स में जुलाई 2021 जो है वो अर्थ वार्मेस्ट मंथ रिकॉर्ड किया गया हिस्ट्री में। इन 2009 एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट चेंज वाज हेल्ड इन कोपनहेगन। ऑप्शन डी इसमें आप टिक करोगे। ठीक है,
और स्टूडेंट्स आपने इस काम को नीट नोटबुक के ऊपर करना है और इससे बुक वर्क को आप अपने बुक वर्क पे बुक के ऊपर करेंगे और इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपने इसे लर्न भी करना है। Okay, dear students, thank you so much for listening me. Hope this chapter will help you to understand these all topics. And please students, इसको आपने understand भी करना है और आपने इसका copy work भी जो है नीट notebook के ऊपर करना है according to the instruction. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.